Hello. Hello, sir. Ki- Good evening. Yeah, Yes, sir. yeah, Audible. yeah. Good evening, Kirti. Rishabh sir already joined us, and we are waiting for few minutes, 1 or 2 minutes. After that, you can continue. Okay, sir. Yeah, Kirti, you can continue. A student will join further on as soon as. Okay, sir. Sure, sir. A very good evening to one and all present here. I, Kirti Rawat, welcome Mr. Bishop to share his expertise, experience, and career guidance to associates, trainers, students, interacted for project guidance, alumni group members. Mr. Rishabh is diploma in computer engineering from Chotu Ram Polytechnic in 2008 and pursuing his graduation in computer science and engineering. In between, he is having more than 16 years of experience as a data engineer, consultant, architect designing, and data intensive application implementer. He worked as data science and Python technologies like Spark, Handloom, Airflow. He is also having programming experience of Python and C. He worked on database like SQL. He is currently working as food delivery domain. He is having experience in India as well as in foreign countries also. Now, I request Mr. Rishabh to share his experience. Sir, I humbly request you, please start your. Okay, sure. Thanks, Kirti, for a wonderful introduction and welcome everyone. And thank you for joining this session. So Thank I you, think, sir. Kirti, yeah, please appreciate that. Like, I think, so just want to understand, like I will just quickly share my journey a bit more in detail, what Kirti has shared. So originally, when I started my journey as a data engineer, back then in 2009, so that time we had a lot of like people were primarily using SQL databases, Oracle, MySQL, SQL Server. And then over a period of time, we started having more cloud and big data. So as we kind of like evolve with time, we also need to evolve like our technology stack. So I would like to like understand from each one of you, like I understand like you may be interested to pursue your career as a data engineer, let's say as a business analyst or a business intelligence developer. So how exactly I can help you? Yeah, please share your any concern queries, and then I think we can proceed further. Yeah, Yeah, students, there is no bar of language. You can ask in Hindi also. It's okay. Uh, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली जैसे कन्वीनियंट हो वैसे पूछें। एंड हमारा एंड गोल है कि एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए बस। yeah, Richa, are you there? यस Tanya? सर, यस सर। आप Yes, sir. Good evening, sir. Yeah, good evening. Any question in your mind? Rishabh sir is there to help you out from that. Yes, sir. Good evening, sir. Yeah, good गुड evening. इवनिंग। हाँ जी। सर अभी मैं बीटेक सेकेंड ईयर में हूँ, फोर्थ सेम में हूँ, तो अभी मेरे को ऐसा क्या सीखना चाहिए जिससे मेरी प्लेसमेंट में हेल्प हो। अच्छा, गुड। तो आप जो बीटेक कर रहे हैं कंप्यूटर्स में ही कर रहे हैं आप? यस सर। तो अब ऐसा है कि अगर आपको प्लेसमेंट के लिए करना है, तो उसमें 2 क्राइटेरियाज़ हैं। एक तो आपका इंटरेस्ट एरिया क्या है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में आपका बहुत बड़ा वाइड एरिया है। तो आपका कोई स्पेसिफिक इंटरेस्ट एरिया है कि नहीं है जैसे? ऐसे तो वेब डेवलपमेंट में ज्यादा इंटरेस्ट है थोड़ा। एग्ज़ैक्टली, तो आपने आंसर दे दिया। जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, आप उसी में ही ज़्यादा अपना टाइम आप उसमें लगाएँ, उसी को सीखें। क्योंकि अगर मैं आपको फ़ोर्सफुली डेटा साइड का समझाने की कोशिश करूँगा और आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, तो आपको काफ़ी डिफ़िकल्टी होगी प्लेसमेंट्स के टाइम। तो अपने स्ट्रेंथ एरिया पे ही काम करें, क्योंकि अपने में आईटी बहुत वाइड है, बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ है, इसके अंदर बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल स्टैक्स हैं। तो पहली चीज़ प्रेफ़रेंस, अगर आप प्लेसमेंट के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो अपना इंटरेस्ट एरिया पे फ़ोकस करें। ओके सर। हाँ जी।
This is the interactive session. Yeah, anyone can ask. Meghna, are you there? Meghna, Tanya. Yes, sir. Sir, good evening, sir. हाँ जी Yeah, good मेघना। evening. Yeah, good evening. Please ask your questions. Okay, sir. Hello, sir. My name is Meghna. I am pursuing my diploma in final year computer engineering. हम्म। Sir, how can we improve our coding? How can we improve on the coding? Yes, sir. ओके, बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है। आई थिंक कोडिंग, लेट्स से कि कोडिंग को सबसे पहले इम्प्रूव करने के लिए क्या होना चाहिए आपके पास? आपके पास होना चाहिए आपके माइंड में एक एंड गोल, आउटपुट, व्हाट यू वांट टू अचीव। कोडिंग इज सेकेंडरी। सो लेट्स से कि आपने अपने माइंड में एक प्रोजेक्ट बना लिए कि मेघना कहती है कि मुझे इस प्रोजेक्ट पे काम करना है, सबके अपने नजर। और उस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए मेघना को सीधा ये नहीं करना कि मैं प्रोग्रामिंग पे जंप करूं। ठीक है, मेघना को पहले हाई लेवल ह्यूमन लेवल स्टेप्स लिखने हैं कि चलो, लेट्स से मेघना कहती है कि मुझे कुछ प्रोग्राम बनाना है जिससे डेटा कॉपी हो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर, राइट? अपने क्वेश्चन निकालो। पहले दरवाजे मेघना क्या करेंगे, उसको हाई लेवल ह्यूमन लेवल पे स्टेप्स लिखेंगी मेघना। इसी से बोल देना। जब आपके पास ह्यूमन लेवल में स्टेप्स होंगे ना, उसके बाद अब आप देखेंगे इसको प्रोग्रामिंग में कैसे हम ट्रांसलेट करें। ठीक है, अब प्रोग्रामिंग में ट्रांसलेट करने के लिए क्या, अब आपका अपना एरिया ढूंढना पड़ेगा। आपको एक्सपर्टीज कौन सा, आपको कौन सा, लेट्स से नॉट इवन एक्सपर्टीज, सबसे आपको इंटरेस्ट कौन सा था। अगेन कमिंग बैक, बहुत वाइड है, आपको किस चीज में Sir, इंटरेस्ट है प्रोग्राम? Python, sir, Python. पाइथन में, राइट? अब लेट्स से पाइथन में भी And just आपके पास काफी सारी लाइब्रेरीज अवेलेबल है। कुछ ऐसी लाइब्रेरी हैं जो आपको ऑलरेडी, जब आपके स्टेप्स लिखे होंगे, तो एक चीज ये सब याद रखें, जितने भी आपको एक्सपर्ट से एक्सपर्ट प्रोग्रामर मिलेगा, वहां पर सब कॉमन है, उनकी फंडामेंटल्स। पीछे है। आप सारी चीजें याद नहीं रख सकते प्रोग्राम में, आपको फंडामेंटल्स याद होने चाहिए, और अगर आपको फंडामेंटल्स पता है तो आप उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन ढूंढ सकते हैं, गूगल कर सकते हैं। लेकिन आज तो आपके पास चैट जीपीटी आ गया है, जेमिनाई आ गया है, क्वेश्चन लेकर एआई आओ। बहुत सपोर्ट करे। ये लेकिन क्वेश्चन एआई को भी समझाने के लिए अगेन आपको स्टेप्स चाहिए, राइट? तो इसीलिए मैंने बोला कि अगर आपको प्रोग्रामिंग में अच्छा करना है, पहले अपने आप स्टेप्स लिख लीजिए हाई लेवल ह्यूमन लैंग्वेज में। फिर उसके बाद लेट्स से अगर मेघना को पाइथन में इंटरेस्ट है, उसको एआई की हेल्प से, लेट्स से कैसे, लेट्स से मेरा ये स्टेप है, प्रोग्राम मेरे को प्लीज हेल्प करे। आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस कर करके एक फ्लो आपके माइंड में बन जाएगा, और आपको पता चलेगा कि कैसे स्टार्ट करना है और कैसे एंड करना है। बट कभी मेरे एक्सपीरियंस, आई थिंक सबका अपना स्टाइल है, कभी सीधा ये मत सोचे कि आपको प्रोग्रामिंग में बहुत अच्छे हैं तो आप यू कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम। नहीं नहीं, कैसे ढूंढूं? प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आपको चाहिए आपको मेरे को। अपना हाई लेवल ठीक एल्गोरिथमेटिक स्टेप्स लिखने ही पड़ेंगे, उसके बाद प्रोग्राम का स्टेप आता है। है। तो और वो आपका पार्ट हो जाएगा, तो आप अब तो एआई की हेल्प से आप उसको अपने स्टेप्स बता सकते हैं कि मुझे ये स्टेप्स करने हैं, लैंग्वेज सीखनी वो आपको चाहिए। देगा। फिर उसके बाद यू हैव टू हैंड्स ऑन। सबसे बस सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके क्या पास एक डेटाबेस वर्किंग सीखनी जरूरी एनवायरनमेंट है। होना चाहिए। आप कोड को याद नहीं रख सकते हैं, वो आपकी फिंगर टिप्स पे अपने आप एक फिंगर मेमोरी डेवलप हो जाती है, ठीक आपको है, पता चल शुरू जाता है करें। कि अब मेरे को क्या करना है, और वो जितना एक प्रैक्टिस करेंगे खत्म होने देना जब वो तक कुछ और लोग अपने आप ठीक हो जाएगा, अपने आप यू विल गेट वेरी एक कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट विद द प्रोग्रामिंग। thank you, sir. ओके मेघना। एनीवन? Hello. आपने कुछ पूछा? Good evening, sir. तान्या? या तान्या, you can ask your question. Sir, Please. actually, recently I'm Tanya, and recently I'm working as a full stack developer, working on React.js, SQL Server, C Sharp, and .NET. ओके And little bit my interest is in app development also. ओके So I want to ask that you have talked about AI, ChatGPT, Gemini, and all about this. करेक्ट। So, मतलब, should we prepare for AI or should we? ओके, मैं क्या समझ रहा हूँ आपका। देखिए, Hello, first- हाँ हाँ जी तान्या, प्लीज कंटिन्यू। हाँ जी। सर मेरी वॉइस आ रही है? हाँ हाँ, बिल्कुल आपकी वॉइस बिल्कुल। आ रही है। आपका क्वेश्चन एक बार वैसे तो वो समझ गए हैं।
आप ये जानना चाह रही हैं कि हम सिर्फ एआई पढ़ें या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को भी पहले करना चाहें, या किस चीज को करें? आपका या क्वेश्चन सर, कुछ मेरा क्वेश्चन यही है कि मतलब एज अ वेब डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर, हमें अपने प्रोग्रामिंग स्किल्स पे ही ज़्यादा फोकस रखना चाहिए, या फिर हमें एआई में भी थोड़ा मतलब प्रैक्टिस वगैरह, या फिर एआई में भी सीखना चाहिए? हाँ बिल्कुल ठीक है। तो देखिए एआई क्या है, आपका एआई क्या कर रहा है, आपका एआई क्या कर रहा है, जो आपके ऑलरेडी एक स्टेप्स को हम अचीव कर चुके हैं ह्यूमंस, उसको वो रिकॉर्ड कर रहा है और उसको रीप्रोसेस कर रहा है। ठीक है, तो एआई इज नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर अ, ये हाइप एक काफी क्रिएट हो रखी है, मैं ये देख रहा हूँ। ए इज नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर ह्यूमन डेवलपर, इट्स जस्ट अ प्रोडक्टिविटी टूल। अगर आपको कोड लिखना नहीं आएगा तो एआई आपको हेल्प नहीं करेगा। लेट्स से आपने एआई की मदद से कोड ले लिया, वो चल भी गया कोड, लेकिन रियल लाइफ में लेट्स से वो कोड में प्रॉब्लम आ गई, तो आप उसको डीबग कैसे करेंगे? आपको एक अंडरस्टैंडिंग होगी तभी आपको एआई हेल्प करेगा, नहीं तो आपको एआई हेल्प नहीं कर सकता। तो अगेन वही चीज है कि अपने फंडामेंटल्स को, अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को बिल्कुल आपको अच्छे से पढ़ना है, तैयारी करनी है। और एआई इज जस्ट अ प्रोडक्टिविटी टूल, नथिंग मोर। नॉर्मली हम क्या करते थे, पहले हम लोग स्टैक ओवरफ्लो को चेक करते थे, हम लोग जैसे अपनी बुक्स वगैरह पीडीएफ में ढूंढते थे। वो सारी नॉलेज एक एक जगह पे कंसोलिडेट हो गई है, तो एक्सेसिबिलिटी फास्ट हो गई है। आपको ज़्यादा सर्च नहीं करनी, लेकिन आपको पता होना चाहिए ना आप क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, तभी आपको एआई हेल्प करेगा। और अभी मैं देख रहा हूँ कि जो करंटली जो एआई है, इट हैज जस्ट अचीव्ड 5 to 10% ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग केस। एक हाइप बहुत ज़्यादा है, लेकिन एआई इज नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर प्रोग्रामर। आपको अपनी प्रोग्रामिंग को अच्छे से सीखना है। एआई कैन देन ओनली हेल्प यू, और एल्स एआई इज जस्ट अनदर टूल, दैट्स ओके, इट। थैंक यू सर। समझ आया, मतलब आपको क्लैरिटी मिली इसमें। सो अगेन टीम, मैं तो यही बोलूंगा, जैसे अभी माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया हो गए, एप्पल हो गए, व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर क्रिएटिंग अ हाइप। बिकॉज होता क्या है कि एआई के बाद ना उनको बहुत सारा इन्वेस्टमेंट मिलती है उनकी कंपनी को। तो इन्वेस्टर्स हाइप के लिए, उसके लिए वो एक हाइप बना रखी है उन्होंने कि एआई कैन डू एवरीथिंग। ये चीजें पहले भी बहुत बार आ चुकी है, लेकिन इसको डिफरेंटली हम लोग इसको रिलेट करते थे। तो एआई इज जस्ट अ प्रोडक्टिविटी टूल, और उसमें बहुत सारी एरर। एक एक बढ़िया एक्सपीरियंस प्रोग्रामर जो है ना, एआई से छोटे छोटे काम कराएगा। एक कंपनी के लिए बड़े सॉफ्टवेयर वगैरह जो बनते हैं, उसका जो फ्रेमवर्क, जो फाउंडेशन होता है, वो एआई आपको हेल्प नहीं कर सकता है। दैट्स इट। आप प्लीज अच्छे से अपनी तैयारी करें, पढ़ाई करें, तभी आप एआई को बहुत अच्छे से यूज कर पाएंगे। Hello, good evening, sir. हाँ जी आशीष। So I have one question. Recently, I am doing BTech in Computer Science, final year student with specialization in data science. वेरी नाइस। So I have one question that how much DSA I have to learn for to become a data analyst? Very good question. I think, Ashish, it all depends company to company. If you are targeting for data analyst, you first good, like I think you should have a good grip on SQL. Yes, sir. ठीक है, तो आपको SQL आपको आनी चाहिए। अब SQL के अंदर भी बहुत सारी वैरायटी हैं। ANSI SQL है, MS SQL की SQL है, और Postgres की SQL है, बिकॉज एवरी डेटाबेस हैज इट्स ओन डायलेक्ट। सो आई वुड सजेस्ट कि नॉर्मली कोई ओपन सोर्स का आप सीक्वल अच्छे से सीखें। Yes, sir. एंड अनदर थिंग, उसके बाद आप नो, देर आर टू टाइप्स ऑफ लाइक डेवलपर्स यू कैन फाइंड, वन हु कैन राइट सीक्वल and second who can write optimized SQL, because when you are a data analyst you would be trying to read data from terabytes of data, and Yes. if and your query may take a lot of time to read data process जब बहुत बड़ा डेटा सेट होता है। तो अगर एक आप अच्छी सीक्वल क्वेरी लिख सकते हैं ऑप्टिमाइज्ड, और आप एक अच्छा एक अपना टेबल डिजाइन वगैरह कर सकते हैं, तो यहाँ आपको बहुत ज्यादा एज मिल जाएगा, जो मैं एक नॉर्मली डेटा एनालिस्ट में देखता हूँ वो नहीं होता है। ठीक है। Okay, sir. Sir, हाँ, for this I have to read. It means RDBMS and non-relational database also. ओके। Both. नॉट अभी डेटा एनालिस्ट जो होता है, लेट्स से व्हेन एग्जैक्टली व्हेन डेटा एनालिस्ट कम इनटू द पिक्चर,
data analysts come into the picture two ways. They work very close to the business and product. तो आपकी बड़ी कंपनीज में क्या होगा, आपकी नॉर्मली हर कंपनी में भी उनको रिपोर्टिंग नीड्स होती हैं, उनको डैशबोर्ड्स चाहिए होते हैं फॉर डिसीजन मेकिंग। तो इसके Yes, लिए sir. डेटा एनालिस्ट क्या होता है, डेटा एनालाइज करता है। अब वो एनालाइज करने से पहले उसको वो डेटा चाहिए होता है। तो लेट्स से इफ यू गो फॉर अ स्टार्टअप, यू वुड बी प्लेइंग अ हाइब्रिड रोल। You will also be a part data engineer and a part data analyst. But Yes. if you go in a company जहाँ पर डेटा इंजीनियरिंग की टीम हो, तो डेटा इंजीनियर क्या करेगा, आपको वो डेटा प्रोविजन करा के देगा। कैसे? एक डेटा लेक बनाएगा और कहेगा कि आशीष ये डेटा सब कुछ यहाँ पर है, आप यहाँ से रीड कर लीजिए। उसके लिए आपको सीक्वल लिखना पड़ेगा। तो डेटा एनालिस्ट को नो सीक्वल पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि नो सीक्वल इज मोर फॉर डेवलपर्स फॉर फास्टर राइट, लाइक मोंगोडीबी हो गया, कैसेंड्रा हो गया। आप प्राइमरली सीक्वल पे ही फोकस करें। अगर टाइम मिलता है, बैंडविड्थ होती है, तभी नो सीक्वल। नहीं तो सब कुछ अगर आप करेंगे तो, लेकिन आपका जो हेवी एरिया जो है, और एक मैं बोलूँगा आपको एक रिपोर्टिंग टूल जरूर सीख लीजिए, जैसे टैब्ल्यू हो गया, या आपको एक फिर एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी डेटा एनालिस्ट का पूरा रोल कैसे चलता है। कि डेटा तो रीड कर लिए, लेकिन उसको प्रेजेंटेबल भी तो बनाना जरूरी है ना। Yes, sir. अगर आप तो बस सिर्फ एक्सेल में चिपका के दे देंगे, तो फिर आपके जो बिजनेस जो एडमिनिस्ट्रेटर, जो आपके बिजनेस डिसीजन मेकर्स हैं, उनको वो विजिबिलिटी नहीं मिलेगी। Okay, sir. So one more question. Sir, I have applied for internships applying for internships right now, and I have seen that the so many of the industries need the web scraping, मतलब data extraction process ठीक work है, for a data analyst. So, sir, which library I have to read for web scraping, and how I can practice the questions of web scraping? वेरी सिंपल। लाइक आई थिंक इसके लिए तो एक स्क्रैपी नाम की एक आपकी है लिब, जो बहुत फेमस है, स्क्रैपी करके आप देख सकते हैं। और उसके लिए अगेन यू नीड टू नो पाइथन। अगर पाइथन आती Yes, होगी, फिर आप स्क्रैपी कर्स यूज कर सकते हैं। अच्छा, yes, आप sir. और इसके लिए एक और चीज भी कर सकते हैं, कुछ कोर्स वगैरह ले सकते हैं यूडेमी से या यूट्यूब पे एक रेफरेंस। तो उनके पास एक प्रॉपर एक आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल मिल जाएगा कि कैसे वेबसाइट से मैं उसको पहले इनसाइट्स चेक करते हैं, फिर उसको हम कैसे स्क्रैपिंग करते हैं, फिर उसको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, अननेस करते हैं जो डेटा उसके अंदर से। तो ये आई थिंक डेटा एनालिस्ट को वेब स्क्रैपिंग तो वैसे आनी नहीं चाहिए, ये डेटा इंजीनियर का काम है। लेकिन आपको इंटरेस्ट कंपनी मांग रही है, तो स्क्रिपी एक अच्छा लैब है जिस पे आप फोकस कर सकते Yes, हैं। sir. Okay. Sometimes I also find that the data pre-processing, collection, extracting, all these steps come for a data analyst also. It totally depends from organization to organization. करेक्ट करेक्ट, एब्सोल्युटली, यस। तो अभी देखिए, सबसे पहले क्या करना है आपको, यू कैन नॉट ट्राई टू लर्न एवरीथिंग, राइट। Yes, तो sir. आपका फोकस है डेटा एनालिस्ट बनना, राइट। डेटा एनालिस्ट के Yes, लिए sir. आप बैक ट्रैक कर सकते हैं। पहले आपने सीक्वल सीख लिया, आपको लग रहा है बहुत कंफर्टेबल है। अब उसके सराउंडिंग जो चीजें हैं, डेटा क्लेंजिंग होगी, स्टैंडर्डाइजेशन होगी, डेटा क्वालिटी होगी, वैलिडेशन हो गया, उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हैं, उसको हाई लेवल पढ़ लीजिए, लेकिन अपना स्ट्रेंथ आप सीक्वल में ही रखें। ठीक है, आप ये मत सोचिए आपको सब कुछ बहुत एंड टू एंड आना चाहिए, बस हाई लेवल Okay. भी हो, आई थिंक यू विल क्लियर थ्रू इट। Okay, sir. Thank you. ओके जी। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ जी सोनम जी। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था आपकी आवाज इको कर रही है कि बहुत। ना आपने कहा कि इंटरेस्ट जो होता है वो हमें पता होना चाहिए। तो सर मैं कैसे फाइंड करूँ कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में है? क्योंकि मैं लास्ट सेमेस्टर में आ गई हूँ अपने कॉलेज के, बट मुझे अभी तक नहीं पता चला कि मैं मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में है। अभी आप लास्ट सेमेस्टर में आओगे, आपको इंटरेस्ट नहीं पता चला, लेकिन अब ये चैलेंजिंग हो रहा है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, क्योंकि जैसे उनको अपनी जर्नी में पता चल गया था कि किसी को वेब डेवलपमेंट होता है, किसी को बैक एंड इंजीनियरिंग होती है, किसी को डेटा में होता है। अब आशीष को डेटा एनालिस्ट में जैसे कर रहे हैं, तो आपको ये थोड़ा सा खुद वर्कआउट करना पड़ेगा अपना इंटरेस्ट ढूंढने के लिए। सर मैंने मतलब वेब डेवलपमेंट में भी थोड़ा सा देखा है और बैक एंड कोडिंग भी की है, मतलब सब थोड़ा थोड़ा हो रहा है, बट करेक्ट। मेरे किस चीज़ का इंटरेस्ट है वो कंफ्यूज हूँ मैं उस चीज़ तो में एक बहुत काम ज़्यादा। कर सकते हैं, लेट्स से अब आपने मेन, लेट्स से हम डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं, राइट। यस सर।
ठीक है, अब इसमें 2 पार्ट आपके बन जाते हैं। एक हो गया जैसे एनालिस्ट और एक हो गया आपका कोड डेवलपर। तो अपनी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अब आपके केस में कोई इंटरेस्ट नहीं पता चल रहा है, आपको स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आपको पसंद हो, फिर उसके रिलेटेड आप फ्रेमवर्क्स पे देख सकते हो। जैसे आप वेब में जाओ, डिजांगो वगैरह कर लीजिए, जैसे पाइथन का हो गया। बैक एंड करनी तो उसके आपने फैक्ट्री पैटर्न्स या आपको अलग और फ्रेमवर्क्स मिल जाएंगे। लेकिन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो एक आपको करनी ही पड़ेगी तैयारी, फिर अगर आपको प्रॉपरली इंटरेस्ट नहीं पता चल रहा। सर मैंने जैसे सी सीखी थी और मैंने पाइथन भी सीखी थी, बट उसका थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं हो पाया था। हाँ, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स वगैरह जो हैं, आपको यूट्यूब पे आपको वीडियोस देखनी पड़ेगी, या कुछ आपको सोचना पड़ेगा क्या बनाना चाहते हैं आप। और ये अपने को फोर्स मत करें, पहली चीज ये आई थिंक सबसे अप्लाई करता है कि आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे। हर चीज को सीक्वेंशली स्टेप लगता है, हर चीज को टाइम देना पड़ता है। तो प्रोजेक्ट उठाएं, अगर उसको टाइम भी लगता है, कुछ समय भी लगता है, पहली बार टाइम लगेगा, लेकिन उसके बाद वो फ्लुएंट हो जाएगा, आपके लिए अपना नेचुरली फ्लो करेगा। तो डोंट गो इन अ रश। मैं आपको ये बोलूंगा कि 1 दिन में ही सब कुछ खत्म करना है, 2 दिन में। सर एक ना और कंफ्यूजन है कि अब जैसे सेमेस्टर तो खत्म होने वाला है और मुझे जॉब करनी है, बट आई एम कंफ्यूज ऑलरेडी कि मैं किस चीज में इंटरेस्ट है या मेरे से क्या हाँ, हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो अभी आप ये देखें ना, अगर लेट्स से आपको प्रोग्रामिंग अगर आप फोकस नहीं कर रहे, तो हमें यही मैं कह रहा हूँ, आईटी बहुत वाइड है। आप बिजनेस एनालिस्ट पे भी देख सकते हैं, जिसको आईटी की फेमिलियरिटी हो, लेकिन वो अपना कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन पे काम, डॉक्यूमेंटेशन पे काम कर सकते हैं। तो आपको उसमें एंड टू एंड डेवलपमेंट नहीं करनी। लेट्स से मैं आपको एक अलग एक जैसे बता रहा हूँ, एक पॉसिबल प्रोफेशन है, मतलब बिजनेस एनालिस्ट का। जैसे तो आपको स्टेक होल्डर, अपने आपके आसपास के टीम वाले लोगों से बातचीत करनी है, उनका काम समझना है, उनको डॉक्यूमेंट करना है, और आपको एंड टू एंड कुछ कोड वगैरह भी नहीं लिखना, बस आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग चाहिए, दैट्स इट। तो आप बिजनेस एनालिस्ट भी चेक कर सकते हैं, एक रोल बिजनेस एनालिस्ट। ओके सर। लेकिन अगर आप एज अ फ्रेशर जा रहे हैं, मैं आपको बोलूंगा आपके लिए सबसे सिंपलेस्ट रहेगा कि आप सीक्वल सीखें, और आप एज अ लेट्स से रिपोर्ट डेवलपर की तरह ट्राई करें। ओके सर, थैंक यू। हाँ जी। बहुत मुश्किल छोटे मोटे लगे हुए हैं। हाँ, किसी और को कुछ क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, प्लीज पूछ लीजिए। सर मेरा एक क्वेश्चन है, मतलब मुझे अगर क्लाउड की लाइन में जाना, क्लाउड कंप्यूटिंग लाइन में, तो किस में जाना चाहिए, क्या स्टार्ट करना चाहिए? आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, अनु। आई थिंक शी इज आस्किंग अबाउट क्लाउड कंप्यूटिंग। अगर मैं क्लाउड कंप्यूटिंग की लाइन में जाऊं तो हम्म, कि मुझे क्या करना चाहिए। ठीक सर। ओके, राइट। अब पहले तो सबसे पहले फंडामेंटली अब ये समझे क्लाउड कर क्या रहा है। क्लाउड ये कर रहा है कि किसी कंपनी को जो इंफ्रास्ट्रक्चर या कुछ रिसोर्सेज खरीदने पड़ते थे, सब कुछ वो आपको रेडिली अवेल कर रहा है। आप बहुत क्विकली एंड टू एंड डेवलपमेंट कर सकते हो, डिप्लॉयमेंट कर सकते हो, ये कर। तो क्लाउड सर्विसेज का यही गोल है, दैट आपको कंप्यूट, आपको सर्विसेज सब प्री मेड रेडी टू यूज दे देता है। तो अगेन क्लाउड सर्विस बहुत बड़ा अपने में एरिया है। अब आप क्लाउड में कौन से डोमेन में आपको पसंद है, डेटा डोमेन है, डेवऑप्स डोमेन है, डेवलपमेंट है, मेंटेनेंस है, ये देखना पड़ेगा पहले। क्लाउड में आपको किस चीज में आपको लगता है क्लाउड आपको थोड़ा अच्छा लगता है, जैसे अनु, आर यू देयर? अब हाँ जी। सर अभी मेरे लिए तो मतलब मुझे कुछ इतना नॉलेज है नहीं, बट मैं इसकी इसी लाइन में आगे जाना चाहती हूँ। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि मुझे किस मतलब किस वे के थ्रू जाना चाहिए? बहुत आई थिंक अगर जैसे आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि क्लाउड आपको इंटरेस्टेड है, क्लाउड में अपना आप बनाना चाहते हैं, लेकिन डायरेक्शन नहीं मिल रहा, सबसे इजी आपको गाइडेड रोड मैप होता ना, वो होता है AWS का। आप सर्टिफिकेशन ट्रैक पकड़ लीजिए कोई, और उसमें क्या था सीक्वेंशियली ना तरीके से वो आपको, जैसे उसका क्लाउड प्रैक्टिशनर एक पेपर है, तो वो अगर आप वो सर्टिफिकेशन की तैयारी करते हैं, वो आपको पूरा मटेरियल भी उनकी साइट पे मिलता है। उससे आपको पहले तो क्लाउड समझ आ जाता है कि ये AWS वाले करते हैं क्या है, क्लाउड में क्या सर्विसेज क्यों दे रहे हैं, क्या रीजन है। तो आपका एक फंडामेंटल स्ट्रांग हो जाता है। फिर उसके बाद आता है स्पेशलाइजेशन।
जैसे मैंने आपको डेवऑप्स करना है, डेटा करना है, फिर जब आप क्लाउड प्रैक्टिशनर का समझ जाते हैं, फिर आपके लिए वो डिसीजन मेकिंग बहुत ईजी होता है, क्योंकि क्लाउड प्रैक्टिशनर में हर चीज़ का थोड़ा-थोड़ा ओवरव्यू देते हैं और फिर अपनी प्रेफ़रेंस के हिसाब से आप फिर वो स्पेशलाइज़ेशन ट्रैक पकड़ सकते हैं। तो ये एक तरीका है क्लाउड में आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का और अपनी स्पेशलाइज़ेशन ढूँढने का। नहीं तो ऐसे तो अगर आप कहोगे मेरे को मतलब ढूँढना पड़े तो बहुत डिफ़िकल्ट है। तो वो टेलर्ड मेड जो उनका सर्टिफ़िकेशन ट्रैक होता है, उससे स्टार्ट करें आप। कोई भी आप क्लाउड प्रोवाइडर ले लीजिए, एडब्ल्यूएस ले लीजिए या एज़्योर ले लीजिए या गूगल ले लीजिए, कोई भी। लेकिन उनका फंडामेंटल वाला आप पहले सर्टिफ़िकेशन ट्रैक देखिए। ओके सर, थैंक यू सर। ओके जी। एक आध और पूछो क्वेश्चन। हेलो, anyone else want to ask right now? Hello, sir. Sir, I have one question. हाँ जी। How मतलब बिना बीटेक की डिग्री के हमें एक अच्छे प्लेसमेंट के लिए क्या करना होगा? तो अभी आप डिप्लोमा कर रहे हैं, राइट? कि आपका हो गया है? जी सर। सर लास्ट सेम सर। लास्ट सेम, राइट? तो सबसे पहले तो ओके, अभी तो मार्केट में सही बताऊँ, आज के टाइम में ना स्किल्स को बहुत अहमियत देते हैं। तो अगर आपको अच्छी प्लेसमेंट चाहिए, आपको अच्छी जॉब चाहिए, आपको अपनी सीवी पर प्रोजेक्ट्स लिखने पड़ेंगे कि आपने सेल्फ कौन-कौन से प्रोजेक्ट्स करे हैं, खुद कौन से अटेम्प्ट किए हैं। दैट्स द मोस्ट ईज़िएस्ट वे। अब लेट्स से अगर कोई रिक्रूटर है और वो उनको कुछ मतलब लेट्स से आपका कोई लेट्स से आप डेटा एनालिस्ट करना चाहते हैं, लेट्स से या डेटा इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड अपने प्रोजेक्ट्स लिस्ट आउट करें अपने सीवी पे, आपने क्या-क्या किया है। इससे जो रिक्रूटर होता है या जो स्क्रीनिंग टीम होती है, उनको कॉन्फिडेंस आता है। फिर वो बीटेक, डिप्लोमा वाला केस जो है कम हो जाता है। हाँ जी। क्या कह रहे हैं आप, मेघना? नो सर, बस मेरा यही क्वेश्चन है, अगर हम बीटेक नहीं करना चाहते, हमें एक अच्छे प्लेसमेंट चाहिए, तो हमें कोडिंग लाइन में आगे जाना है, तो हमें ज्यादातर कौन सी लैंग्वेज पर ध्यान देना चाहिए? पाइथन पर, जावा पर, फिर सी पर? अच्छा, कर अभी जैसे दो बहुत सारी इसमें बहुत अगेन बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सिंपल वे से ये देखें। पहले तो आपको कौन सी सिंपल लगती है? गारंटी नहीं है, अभी तक किसी ने नहीं सी कहा। सर। सी लगती है, राइट? मैं आ जाऊंगा सुबह 10 बजे। 1 सेकंड। हाँ, लेकिन अभी सी का भी देखिए मार्केट में अडॉप्शन नहीं है, अभी बहुत हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चल रही है। पाइथन हो गई, आपकी गो हो गई, आपकी जावा भी है डिमांड में। तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे लेट्स से पकड़ लीजिए। उसके बाद आप रिलेटेड आप कुछ प्रोजेक्ट्स अपने सीवी पे लिस्ट आउट करें, और जब आप प्रोजेक्ट्स लिस्ट आउट करें ना, उसके आउटपुट में नंबर्स लिख लीजिएगा। नंबर्स जैसे कि मैंने जब ये ऑटोमेशन किया या कुछ प्रोजेक्ट बनाया, इससे करने यूज़ करने से 3 दिन का कुछ इम्पैक्ट आया। लेट्स से मेरे 3 दिन बच गए, जो पहले मेरे को 1 हफ्ता लगता था करने में, या 4 दिन लगता था। तो इम्पैक्ट ज़रूर लिखिएगा प्रोजेक्ट का क्या होता है। इससे क्या होता है कि जो रिक्रूटर होता है या जो स्क्रीन कर रहा होता है आपका सीवी, उनको आपकी प्रोफाइल में बहुत इंटरेस्ट आ जाता है कि आपने कुछ सही में किया हुआ है। फिर वो डिप्लोमा डिग्री वाला जो सिचुएशन होती है वो वैसी नहीं रह जाती, बिकॉज़ आपके पास स्किल्स हैं। और एंड दे फील दैट अगर आपको हम हायर करते हैं तो फटाफट यू कैन ऐड वैल्यू। ठीक है? तो आप लैंग्वेज कोई भी उठाएं, लेकिन प्रोजेक्ट वर्क पे ज़रूर काम करें, एक्सपीरियंस गेन करें। यस। ओके, थैंक यू सर। हाँ जी। सर बट कहीं-कहीं पर ना कंपल्सरी होता है कि बीटेक एलिजिबल में ही, तो फिर क्या करें हम? अब फिर बहुत सारे ऑप्शंस हैं ना, एक कंपनी के बेसिस पे आप अपने को डीमोटिवेट ना करें। मार्केट बहुत बड़ी है, हर तरह की कंपनी से। अभी वो सिचुएशन उतनी टफ नहीं है जैसे पहले हुआ करती थी। गाइडलाइन क्राइटेरिया जब से गूगल वगैरह में मेरे फ्रेंड्स काम करते हैं, जैसे उन्होंने बीटेक नहीं करी हुई है, वो उन्होंने लाइक जस्ट नॉर्मल 12th क्लियर करी है। सो मैं ये नहीं कर आपको 12th करनी है, क्योंकि गूगल को उनमें इंटरेस्ट क्या है, उन्होंने प्रोजेक्ट वर्क कर रखे थे, उनको फ्रीलांसिंग कर रखी थी। तो यू हैव टू शो दैट एक्सपीरियंस कि आप कैसे उसको बैलेंस कर रहे हो। अगर आपने बीटेक नहीं कर रखी तो वो अपने प्रोफाइल पे कैसे दिखा रहे हो, राइट? बीटेक वाले का
फायदा होता है उनको लेने का कि उनको लगता है कि इसको फाउंडेशनल नॉलेज है, दे हैव वर्कड ऑन सम प्रोजेक्ट्स। तो अगर आपको वो चीज को काउंटर करना है तो आपको कुछ अपने सीवी पे वैल्यू दिखानी पड़ेगी, एज लाइक आपने खुद सेल्फ प्रोजेक्ट्स जो भी किए हो उसके साथ। या और सर क्या डेटाबेस सीखना जरूरी है, मतलब कंपलसरी है? हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? सर डेटाबेस जो होता है, डेटाबेस सीखना कंपलसरी है? डेट अब डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट में अगर आप जो बना रहे हैं उसमें रिक्वायर्ड है तो यस डेफिनेटली, लेकिन हर चीज तो आजकल डेटा के ऊपर ही है, राइट? एक डेटाबेस तो आना ही चाहिए और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से। ओके सर। हाँ जी। So anyone else? Hello, Kashish, सर is there any question from your side? Kashish, am I audible मेरे to you? क्वेश्चन हेलो, हाँ जी। सर Hello, आपकी ये जॉब डिप्लोमा hello. बेस से लगी थी, तो आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस और आपका इंटरव्यू मतलब कैसा था? So Correct. Rishabh sir, you continued very well and you guided the students also. Hope that will be beneficial for them. किसी और का कोई क्वेश्चन है तो नहीं अभी जो पूछना हाँ चाहे? जी, पंकज सर, अभी अनु ने क्वेश्चन पूछा स्टूडेंट्स, है। एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ पा रही है आप लोगों को? यस यस सर। यस सर। ओके। पंकज सर, आपको हमारी आवाज आ रही है? कैन यू हियर अस? या नाउ आई कैन हियर यू। ओके, तो पंकज सर, अनु का या एक क्वेश्चन है कि अच्छा आपको अनु, डिप्लोमा का जॉब का कैसे एक्सपीरियंस रहा आपका, मतलब कैसे ओके। प्लेसमेंट्स वगैरह? हाँ जी। हाँ हाँ हाँ, नहीं तो दैट्स अनु वेरी गुड क्वेश्चन कि यू शुड शेयर कि आप डिप्लोमा के बाद कैसे जॉब लगे, कहाँ कहाँ गए। योर स्टोरी वांट्स टू नो, एवरी स्टूडेंट वांट्स टू नो। हाँ जी, हाँ जी, मैं वही एग्जैक्टली। जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैंने डिप्लोमा किया तो मुझे सबसे पहले वो याद है, मुझे एचपी से ऑफर आया था हाँ, एंड वो फील्ड वर्क का था। तो ओके, उन्होंने फील्ड वर्क। बोला फील्ड वर्क, हाँ, कहते हैं भैया आपको सबके घर जाना है, लैपटॉप रिपेयरिंग वगैरह करना पड़ेगा। तो फिर मैं वहाँ गया तो मुझे एक सीनियर मैनेजर ने बोला कि बेटा देखो, ये इट्स नॉट एंड दैट इजी, बहुत बहुत है इसमें, आपको चाहिए होगी, एफर्ट चाहिए होंगे। हम्म तो बोला का मैं तो रेकमेंड करूंगा कि आप जो है लुक आउट फॉर समथिंग एल्स, अगर नहीं आपके ऑप्शन है तो एचपी को परस्यू करें आप, मतलब यही ऑप्शन जो है। ओके। तो छोट अभी इसके बाद डीमोटिवेट हो जाता है बंदा कि अब क्या किया जाए ना, कि अब ये कि अभी वो भी कह रहे हैं कि डिफिकल्ट है ये। तो फिर मैंने अपने कुछ रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स से बात की, तो उन्होंने बोला कि देखो ऋषभ, ओनली वे जो ही मैं आपको भी वही गाइड कर रहा हूँ, आपको डिप्लोमा होल्डर को कोई कंपनी इसलिए लेगी क्योंकि आप वैल्यू ऐड कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, मैंने ओरेकल से सर्टिफिकेशन की उस समय। हम्म। आई स्पेंड सम टाइम, डिड सम सर्टिफिकेशन टू शो दैट इवन मैंने डिप्लोमा कर रखा है लेकिन मेरे पास नॉलेज है। और मैंने ओसीपी का पेपर दिया, ओरेकल सर्टिफाइड प्रोफेशनल 11G, और उस हम्म। पेपर को देने के लिए somebody needs at least 4-5 years experience to clear that paper, यस। right? हाँ, So इन that's not 2008। क्या कह रहे हैं सर आप? हाँ, मतलब अराउंड 2010-11 यू डिड ओसीआई। मैंने ओसीपी किया सर, यस, ओसीपी। ओसीपी किया, ओसीए किया, एंड फॉर दैट अभी क्या है कि अभी जब ओसीपी करना है, मैंने ओरेकल यूनिवर्सिटी में भी इनरोल किया। ओके। सो टू जस्ट टू गेन सम लाइक कॉन्फिडेंस ऑल्सो कि अगर आप मेरा सीवी देख रहे हैं, हम्म। इवन दो मैंने डिप्लोमा किया है लेकिन मैंने एडिशनली आई पुट एन एफर्ट, मैंने एफर्ट किया है ये सारी चीजें सीखने के लिए। यस। और उसका आपको भी कॉन्फिडेंट फील होता है कि आप सर्टिफाइड कर रखा है, ओरेकल कर रखा है। आप बीटेक के बाद यू कैन नॉट एक्सपेक्ट पीपल टू डू दैट नॉर्मली, या ठीक है। और मैं सिर्फ 2 बार ही इस पेपर में ओसीपी में फेल हुआ था, और मुझे आज भी याद है कि मैं जब कंपनी में गया था, मेरे सीनियर टू सीनियर लोगों ने भी ओसीपी नहीं कर रखा था क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड पेपर था उस ओके। समय ओसीपी का।
Okay. Then what was the cost of OCP at that time for giving exam? So cost of paper was I think 7,000 per attempt. Okay. लेकिन जो उसकी ट्रेनिंग ली थी that cost 60,000 I think 50-60,000 for 5 days. Okay. Very. उसके बिना आपको पेपर नहीं देने देते वो ट्रेनिंग के बिना. Hmm. उस समय वो And मैंडेट था, लेकिन अब AWS में ऐसा कुछ मैंडेटरी शायद है नहीं, लेकिन उस समय hmm. था. तो I, अब क्या करें ना सर कि आपको बैलेंस करना है वो मार्केट के अंदर अपने आप को कैसे करा जाए. तो जी. टू डू समथिंग एडिशनल. अगर मैं Okay. बोलूँ डिप्लोमा किया हुआ मुझे आप ले लीजिए और मुझे वर्क फिर सिखाएं मतलब काम के साथ, तो बहुत कम कंपनी से इंटरेस्टेड है क्योंकि उनको चाहिए स्किल्स, उनका टाइम नहीं है, इससे आपको हायर करेंगे वो. Yeah. Definitely. राइट. हाँ जी, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रोजेक्ट वगैरह करें. तो मेरी जर्नी में यही था कि मैंने बहुत डिफिकल्ट लगा क्योंकि मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में करा डिप्लोमा और मेरे को लगा ये नहीं हो पाएगा. लेकिन अब ऐसा होता है कि आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको अपने आप कंफर्ट आती है. तो हम ऐसा नहीं है कि मैजिक हैपेंस फ्रॉम डे वन. आपको एफर्ट करना पड़ता है, आपको टाइम देना पड़ता है और डिसअपॉइंटमेंट भी होती है. प्लीज बी रेडी फॉर इट. फिर आपका आउटपुट आता जरूर है पर क्योंकि आप गिव अप नहीं कर रहे हैं. Yes. Definitely. तो सर फिर वो ओसीपी किया मैंने फिर जैसे और सीवी पे डाला. उसके बाद मेरा जो है थोड़ा प्रोसेस इजी होने लग गया. मुझे काफ़ी सारी रिक्रूटर्स की कॉल आने लगी. नॉट बिकॉज आई डिड डिप्लोमा, बिकॉज मैंने वो सर्टिफिकेशन कर रखी थी. Okay. तो उनकी मैं एक क्राइटेरिया में कैच हो गया. उनको ओरेकल इश्यूज थे तो उनको लगा कि इसने ओसीए कर रखी है. एसोसिएट पीएल सीक्वल मैंने करा था तब. Mm-hmm. और डेटाबेस का मैंने एडमिनिस्ट्रेशन का किया था. तो Hmm. वो मेरे लिए काफ़ी वर्कआउट किया. कॉस्ट थी इनिशियली बट वो मुझे हेल्प किया. उसके बाद फिर मैंने एएमआई में साथ साथ एनरोल कर लिया. तो लेट्स से मैं इंटरव्यू में गया तो वो इंटरव्यू का क्वेश्चन था कि आपने ओसीपी ओसीए कर लिया. तो क्वेश्चंस वगैरह मुझे बहुत सिंपल और नॉट आई वुड से सिंपल बट रिलेटेबल लगे रियल वर्ल्ड में. क्योंकि जब आप सर्टिफिकेशन की तैयारी करते हैं आपको रियल वर्ल्ड तरीके से ही वो केस सर्टिफिकेशन होती है जो आप Hmm. डे टू डे फेस करते हैं. जी. तो इसलिए मैंने अनु जी को बोला, आई थिंक मेरे को नहीं, सोनम जी को, कि एक अगर आपको डिग्री नहीं करनी बीटेक, सर्टिफिकेशन का कोई ट्रैक पकड़ लीजिए. आपको मार्केट में दिखाना पड़ेगा कि यू हैड दैट, यू कैन ऐड वैल्यू टू देयर कंपनी. तो वो हेल्प करता है. लेकिन एक बार आप कंपनी में ऐड हो जाते हैं, आपका एक्सपीरियंस आता है, उसका सर्टिफिकेशन ना भी करें, आपका इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस अपने आप बनना शुरू हो जाता है. Yes. So Anu, I hope you get the answer कि if Yes, you are sir. only diploma, अगर आप डिप्लोमा हो तो आपको कुछ सर्टिफिकेशंस अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से, लाइक ऋषभ सर ने करा और एकल को फाइंड आउट करा, उसका जो भी एग्जाम थे उसका सर्टिफिकेशन पाथ जो थे उनको फॉलो करा. तो देयर आर टुडे आल्सो देयर आर मेनी सर्टिफिकेशंस अवेलेबल. यू कैन फाइंड आउट अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट और आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो उसमें भी. Okay, और sir. आप Thank you, sir. और कोई क्वेश्चन आपका? No, sir. थैंक यू अनु जी. Thank you, sir. वेलकम. सो हाँ जी सर. या आई थिंक सबने अपने क्वेश्चंस पूछ लिए हैं एंड योर गाइडेंस विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल. सो वी कैन arrange the session if required again. So today we can close and thank you for joining and thank you Kirti also for nice introduction at starting of Rishabh sir. थैंक Thank you Rishabh sir and thank you student for joining to this session. Thank थैंक you, यू sir. सर. थैंक यू एवरीबॉडी. बाय बाय. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू जी.